Good morning, dear students. In our last class, we had already started a new chapter, that is Principles of Management. So, the word Principles of Management, the chapter's name Principles of Management consists of two words. The first word is principle, another word is management. So, we had already discussed about what is management. Management is an art of getting things done through others. दूसरों के द्वारा काम को करवाने का प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम लोग? मैनेजमेंट करके बोलते हैं. उसी तरह प्रिंसिपल्स. So what do you mean by principles? Principles are the basic statement which provide understanding and guidance for thinking and action. एक चीज को समझने के लिए, एक चीज को जानने के लिए जो प्रोसीजर, जो चीज को हम लोग फॉलो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स. So all the principles are the fundamental truths which is universally accepted. जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ्स होते हैं. जैसे कि साइंस में एक प्रिंसिपल है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रिंसिपल इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. सब लोग उसे मानते हैं. जो भी चीज हम लोग ऊपर को फेंकेंगे वो फिर से नीचे आएगी. तो ये क्या है? एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है. सो principles of management, and also we discuss about the various differences between pure principle and management principle. Pure principle मतलब the principles which were accepted in science or in other cases, and management principles मतलब the principles which are accepted in management. And also whenever we are talking about a principle, that principle must be derived in two ways. What are the various methods for deriving a principle? There are generally two methods are there. First one is experimental method, second one is observation method. All these things we had already discussed in our last video. So in this video we are going to start the various features of principles of management. Features or nature of So let us discuss about the various features of nature of principles of management. So generally what is principles of management? Principles of management का मतलब क्या होता है? Principles of management मतलब these principles are generally derived by the managers. While they are doing their day-to-day operations, they must have applied these principles in order to do their work effectively. So ये जो principles है, ये सारे principles क्या होते हैं? These are applied or these are accepted by the managers while performing their job. So this principle does not provide ready-made solution. Ready-made solution मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया. उसी तरह ये मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, यहाँ पे क्या होता है? मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स होता है उसको हम लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर इसको क्या करेगा, डायरेक्टली लाके अप्लाई कर देगा और उसको आंसर मिल जाएगा. ये क्या होता है? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा, फार्म टू फार्म डिफर करेगा, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिफर करेगा. तो ये क्या होता है? मैनेजमेंट का पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे ये सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा बिजनेस में. ठीक है. So let us discuss the various features or nature of principles of management. The first principle is of management is universally accepted. So what do you mean by universally accepted? Already this point is also discussed in management features also. So universally accepted means ये जो सारे जितने भी principles हैं, जितने भी principles of management है, these all are universally accepted by all managers. These are not only used in India but also used outside countries. These are not only used in small firms but these are also used in other countries or large scale organizations. Even these are not only used in business cases but also it is used in other activities also. Let's say for example, जैसे कि लास्ट क्लास में एक प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया था, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क. जैसे कि प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. जितने भी हमारे पास काम है वो सारे काम को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे अमंग ऑल द स्टाफ्स, so that each employee doing a specific work and that leads to specialization. अगर हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो काम क्या होगा? अच्छे से हो पाएगा. ये जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है, इट इज नॉट ओनली यूज्ड इन बिजनेस
बट ऑल्सो यूज इन ऑल अदर एक्टिविटीज। ठीक है, उसी तरह ही जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जितने भी सारे प्रिंसिपल्स है, these principles are universally accepted, but the condition is that these are vary from organization to organization. These principles were given, these are universally accepted, but subject to some conditions. What are the major conditions? These are depending upon the persons, so that's why this will vary from one person to another person, one organization to another organization. जैसे let's say for example, suppose मान लो कि एक मतलब कहावत है कि जैसे कि जो ज्यादा टाइम पढ़ेगा उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा, जो जितना ज्यादा टाइम पढ़ेगा उसका रिजल्ट उतना अच्छा होगा। तो इसको अगर हम लोग मानेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, अगर आप 5 घंटा पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट 80% होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? वो सब्जेक्ट डिपेंड करेगा किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर। जो बच्चा ज्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ेगा उसका रिजल्ट उतना अच्छा होगा, जो सिर्फ मतलब ऐसे बुक निकाल के रखा होगा लेकिन पढ़ता नहीं होगा उसका रिजल्ट तो उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो डिवीजन ऑफ मार्क हो गया। तो ये जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये डिपेंड करता है कंडीशंस क्या होगा। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है बट दीज आर सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, तो डिपेंड वेरी करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। देन द सेकंड प्रिंसिपल, the second principle is general guidelines. As we already discussed about the various principles or features of principles of management, the first feature is universally accepted, second feature is general guideline. General guideline means, as we already discussed, all the principles are the fundamental truths. फंडामेंटल ट्रूथ मतलब जिसको कि सभी लोगों ने माना होगा, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। तो डिवीजन ऑफ वर्क ये क्या होता है? इट इज नॉट ओनली यूज्ड इन बिजनेस, अदर केसेस जैसे कि अभी सपोज मान लो कि हमारे स्कूल में 4 टीचर है, तो चारों टीचर के अंदर में 4 सब्जेक्ट को डिवाइड हो गया, एक टीचर एक सब्जेक्ट ही पढ़ाए, तो उसमें क्या होगा? उनका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, काम अच्छे से हो पाएगा। तो it is not only used only in business sectors but also in other sectors. So these are the general guidelines. General guidelines means fundamental rules which is universally accepted. जैसे कि for example एक और प्रिंसिपल है फेयर रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। फेयर सैलरी देना चाहिए एम्प्लॉइज को। अगर हम लोग बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को ठीक से अगर सैलरी देंगे, तो प्रिंसिपल क्या बोल दिया कि सारे एम्प्लॉइज को अच्छा सैलरी देना चाहिए, लेकिन वो कंडीशन क्या बोल रहा है? अच्छा सैलरी मतलब कोई अमाउंट फिक्स नहीं है कि 10,000, 20,000, 10,000, 20,000, 50,000, ऐसा कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट ऑफ सैलरी मस्ट बी इन ए फेयर वे। फेयर वे मतलब जो मतलब उसका पाना चाहिए उतना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये क्या है? जनरल गाइडलाइन है, लेकिन ये क्या होता है? सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करता है, कंडीशंस अप्लाई हो रहे हो वहां पे। सो दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब सारे एम्प्लॉइज को अच्छा सैलरी देना चाहिए। अच्छा सैलरी मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल में नहीं बोला गया है कि कितना देना चाहिए, वो क्या होता है? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देन द थर्ड वन इज, let's discuss the third point. The third point is cause and effect relationship. While we are designing any principle, there must be a cause and effect relationship. So what is cause and effect? For every effect there must be a cause. So that must be proved while we are deriving a principle. So whenever we are doing any action, that action must be affected by some causes. Okay, अभी मतलब हम लोग जितने भी सारे काम कर रहे हैं वो सारे काम क्या होता है? दूसरे जो हमारे मतलब प्रीवियस वर्क्स होता है उसके ऊपर ही हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है। उसी तरह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क किया, तो जब हम लोग काम को डिवाइड कर देंगे सारे एम्प्लॉइज के बीच में, तो काम क्या होगा? अच्छा होगा। सो डिवीजन ऑफ वर्क जब हम लोग करेंगे, अगर हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे तो उसका
to specialization. Specialization means expertness. If a person doing one type of work for repeatedly a number of years, then that leads to specialization. So here the effect is specialization, and for that effect the cause is division of work. क्योंकि हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. सो प्रिंसिपल्स में क्या होता है, जितने भी हम लोग प्रिंसिपल्स करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा, फेयर रेमुनरेशन होगी. सारे एम्प्लॉइज को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सैलरी देंगे. तो अगर मैनेजमेंट सोचेगा कि सारे एम्प्लॉइज को अच्छा सैलरी प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होगा, दे आर मोटिवेटिंग to improve their performance, isn't it? If the management give fair remuneration to each and every worker, that leads to motivating the employees for doing their job in an effective manner. So जितने भी सारे काम है यहाँ पे ये क्या है, यह है defect, and the cause is fair remuneration. So due to fair remuneration, the employees are motivated to do their work more effectively. So for in every principle there must be an effect and there must be a cause. ठीक है, तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि क्या कॉज है और उसका रीजन क्या है. तो ये डिपेंड करेगा. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बोला था, जो जितना टाइम ज्यादा पढ़ेगा उसका रिजल्ट उतना अच्छा होगा. तो यहाँ पे रिजल्ट जो है ये क्या हुआ, ये हुआ इफेक्ट. उसका कॉज क्या है, तुमने कितना टाइम का पढ़ाई किया, ये है कॉज, और उसका रिजल्ट जो आया वो है तुम्हारा इफेक्ट. So in every principle there must be a cause and effect relationship. Then the fourth one is the fourth principle is formed by practice and experiment. Formed by practice and experiment. इसका मतलब क्या है, जितने भी सारे प्रिंसिपल्स है, these all principles are created by practicing more and more times. These are continuously observed, repeated experiments are done. These are experimented for a number of times, and the result, and or we can say the outcome, what is derived by the observation. These are by saying that we can derive the principle. So all the principles are the result of continuous practice and repeated experiment. जितने भी प्रिंसिपल्स है, अभी जैसे कि मान लो उनके डिवीजन ऑफ वर्क हो गए, तो जो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय द हेनरी फेयर. हेनरी फेयर जो है उन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव किया था. ऐसा तो नहीं है कि हेनरी फेयर सोए थे और उसके बाद आके बोल दिए कि ऐसा ऐसा प्रिंसिपल्स है, डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंसिपल उन्होंने डिराइव किया है, जो प्रिंसिपल उन्होंने बोला है, दीज प्रिंसिपल्स आर कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व्ड, प्रैक्टिस फॉर ए नंबर ऑफ टाइम, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स आर डन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स द रिजल्ट विच कम, ऑन दैट बेसिस दे डिराइव द वेरियस प्रिंसिपल्स. सो ऑल द प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स. And the fifth one is so here the fifth point is flexibility. Flexibility means we already know the word flexibility refers to changing. Changing means here the features or the needs. जितने भी सारे principles of management है, these are not rigid. Rigid means these are not constantly used. ये जो होता है ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन दे देता है मैनेजर को. ये क्या करता है, मैनेजर को दिशा दिखाता है कि कैसे काम करना है, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द प्रॉब्लम. सो ये शो करता है कि कैसे प्रॉब्लम से आउटकम करना, प्रॉब्लम से निकलना है, ये शो करेगा. तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स all the management principles are flexible in nature. Flexible means these are not constant, these are not absolute, these are clearly defined, and these are changed as per the need of the manager. These are applied when the manager wants to apply. It depends upon the particular need of the manager. Situation क्या है उसके बेसिस पे मैनेजर क्या करेगा, इसको अप्लाई करेगा. ठीक है, so this is the fifth point, and the last point is
एंड द लास्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन। बेस्ड ऑन सिचुएशन मतलब जितने भी सारे प्रिंसिपल्स है, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब डिपेंड करता है मैनेजर कब उसे यूज करेगा, कोई रिजिड मतलब कंस्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। उसी तरह बेस्ड ऑन सिचुएशन सेम रिलेटेड पॉइंट है। सिचुएशन का मतलब क्या होता है, मैनेजर को डिसाइड करना है कि कौन से सिचुएशन में किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है जो कि मतलब यूज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के बेसिस पे मैनेजर उसे अप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मान लो कि एक छोटा बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में है, तो वहाँ पे क्या है, वो ये एक सोल ट्रेडरशिप बिजनेस है और उसका बिजनेस का साइज बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक आदमी को एम्प्लॉय हायर करेगा और उससे सारा काम करवा सकता है। लेकिन मान लो 1 साल के बाद उसने क्या किया, 5 और नए शॉप्स खोल दिए, तो अभी क्या करेगा, वो जो सारे 5 शॉप को मैनेज करने के लिए वो फिर से नए 5 एम्प्लॉय को हायर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, एक एम्प्लॉय एक शॉप को मैनेज करेगा, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। सो ये जो बेस्ड ऑन सिचुएशन का मतलब क्या होता है, जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है ये क्या करेगा, पर्टिकुलरली डिपेंडेंट होगा कि बिजनेस का नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, सिचुएशन के ऊपर बेस करेगा। लेट्स से इन केस ऑफ सोल ट्रेडरशिप डिवीजन ऑफ वर्क may not be practiced, but in case of large scale organization, in case of company, in case of cooperative society, we must have to practice the division of work formula or principle. अगर एक बिजनेस के पास पैसा नहीं है तो वो सारे काम एक आदमी से करवाएगा, जैसे कि सोल ट्रेडरशिप में होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप है या फिर थोड़ा बड़ा बिजनेस है, वहां पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, और दीज आर द वेरियस प्रिंसिपल्स, these are the various features of principles of management. The first feature is universally accepted. Universally accepted का मतलब these principles are universally accepted throughout the world. It is not only used in India but also used in other countries. It is not only used in business sector but also in other sectors. So that's why it is called universally accepted. Let's say division of work. So इसका जो example है division of work, division of work जो है वो सारे जगह पे यूज हो रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं, बिजनेस में डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। ठीक है, तो जनरल गाइडलाइंस मींस ए सेट ऑफ डायरेक्शन गिवन टू द मैनेजर्स, दीज आर जनरली एक्सेप्टेड या फिर हम लोग बोल सकते हैं जनरल गाइडलाइंस मींस दीज आर द फंडामेंटल ट्रूथ्स। जैसे कि उसका एग्जाम्पल था फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब सारे एम्प्लॉइज को अच्छा सैलरी देना चाहिए, तो ये है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल या फिर बोल सकते हैं जनरल गाइडलाइन। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट फिक्स नहीं किया है कि 10,000, 20,000, 50,000 होगी, वो क्या होता है, डिपेंड करेगा। देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फॉर एवरी इफेक्ट देयर मस्ट बी ए कॉज। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। फेयर रेम्यूनरेशन हो गया, दैट लीड्स टू इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी। Then formed by practice and experiment. All these principles were formed after repeated experiment, continuous observation. Due to continuous practice, all the principles were derived. Flexibility. Flexibility means changing in nature that were changed as per the need of the business, need of the manager. Then based on situation, particularly क्या होता है, that will depend upon the situation or need. जिसका मतलब मैनेजमेंट का नीड के ऊपर सारे प्रिंसिपल डिपेंड करते हैं। मैनेजर जो होता है वो नीड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा बिजनेस में। ठीक है, सो दिस इज ऑल द फीचर्स